आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं एसएम मसूद अहमद। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर। बरसा बरस से नाइंसाफी हुई, उनको उनका हक नहीं दिया गया, उनकी पसमानदगी पर हर किसी ने वोट लिया और उनके पिछड़ेपन को बताते हुए कई लोगों ने अपनी सियासी दुकानों को चमकाया जरूर, बनाया जरूर और मजबूत किया, लेकिन बीसीस के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। और आज भी मैं यहां इस ऐवान में इस स्टेटमेंट पर जब बात करता हूं तो शिद्दत के साथ यह बात महसूस कर रहा हूं कि आज भी बीसीस को इंसाफ देने का किसी का इरादा नहीं है, किसी की नीयत नहीं है। अगर इरादा और नीयत है कि बीसीस को इंसाफ दिया जाएगा, बीसीस को उनका हक दिया जाएगा, तो सबसे पहली अगर कोई जिम्मेदारी थी हुकूमत की और चीफ मिनिस्टर साहब की, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सर्वे हुआ, इस सर्वे की रिपोर्ट को आप टेबल करना था। सर, टेबलिंग ऑफ द रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल the report is not tabled, what are we going to discuss? Sir, through you, I want a clarification. When the Honorable Chief Minister Sahab or the BC Welfare Minister Sahab is going to rise for a reply, I request him to kindly give me the reply. We all are discussing, and Honorable Leader of the House is also saying that there is no sanctity. The report or the survey conducted by the BRS government wasn't tabled. Yes, I'm also in the house. It wasn't tabled. It wasn't an official announcement. No minister came and gave the report to the media or for the people and public domain, sir. That is right, sir. But what is happening today, sir? Today also, the government has done a survey, but doing the same thing by not tabling the report. Sir, I really want to know the sincerity and the commitment towards the BCs, sir. If they are sincere, they are committed, and they are for the BCs, they have to table the report so that all the BCs leaders, sir, all the legislatures, all the members of the parliament, all the political parties and the leaders, and all the BC Sangam people can also read the report and see the findings of the report, sir. Sir, now, sir, many statements have been given in the House, and many statements have different figures, numbers. What tomorrow, sir? One says, after 5 years, yes, Congress had also done a survey, but it has not been tabled, so there is no sanctity of the report. So what is the answer that you have for this? Kindly, sir, I always believe in criticizing, constructive criticism, sir. तामीराती तनखीद करना चाहिए। सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से सवाल कर रहा हूं, क्या मेरा सवाल गलत है? आप बोल दीजिए। आप बोल रहे हैं कि बीसीस के साथ नाइंसाफी हुई। मैं भी मानता हूं कि हर वक्त बीसीस के साथ नाइंसाफी हुई। कई लोगों ने उनको इंसाफ दिलाने की बात की, ताकतवर बने, इख्तिदार पे आए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आपसे उम्मीद है, अगर आपसे उम्मीद है तो आपको भी चाहिए कि इस रिपोर्ट को टेबल करिएगा, ताकि हकायक सामने आ सकें कि क्या है। अब आज स्टेटमेंट में आप एक फिगर दे दिए, इतने बीसीज है, इतने एससीज है, इतने एसटीज है, इतने माइनॉरिटीज हैं। सर, दिस कैनॉट गो लाइक दैट। That is the reason, and sir, it is a very important issue, sir. It is a very important issue, sir. सेंसस में या उसके बाद में एक सर्वे यहां से हुआ, फिर यहां से हुआ। सर, शायद मैं गलत हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 50% से ज्यादा आबादी। ऑनरेबल स्पीकर, सर, I thank the Honorable Legislative Affairs Minister for rising and giving a reply to my demand, sir.
Sir, but at the same time, let me correct the Honorable Minister Saab. He's been into public life. I have been into public life, sir. Sir, when survey orders have been given, sir, they compile the report, and then it is being submitted, and the group of ministers have also studied. I am not asking about any private details to be given. I am only asking the findings of the report to be tabled. The report which have been Sir, submitted by the cabinet subcommittee, that has Sir, been tabled in the assembly. that has to be. Sir, now, sir, to win a debate, my learned friend can really win a debate. I do not mind losing my argument over here. But my only concern is that a concise, sir, I am not saying that कि full आप पूरा दियो. इसको छोटी रिपोर्ट बनाते हैं सर. There are many details. लेकिन उसको छोटा करते हैं और वो रिपोर्ट को सबमिट करते हैं. वो रिपोर्ट हम टेबल करेंगे बोल के अगर हुकूमत की तरफ से अगर हमारे मुतालबे पर यस बोल देते हैं तो द आर्ग्यूमेंट एंड्स हियर. दैट्स इट. कैबिनेट सर. स्पीकर सर, मैं एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये जिस्ट ऑफ द 4 वॉल्यूम्स जो सरकार ने जितना कोशिश किए, मेहनत किए, सब कुछ कंपेल कर दे के इन द नेम इन द शेप ऑफ स्टेटमेंट वी हैव गिवन ऑल द डिटेल. दो इफ यू आर नॉट satisfied with this statement, if you need more information, there are 4 volumes. 3 volumes are for process. 4th volume is each individual data. I cannot disclose 4th volume or I cannot table that details. Why? Because the 4th volume is each individual data. It is contractual agreement between government and individual. So Data Privacy Act is there. I cannot disclose without their permission. If they give permission, I can table that report. Other than that data 4th volume where the individual's information is there, other than 3 volumes, I am ready to table that 3 volumes of the data. I don't have any issues. इसमें हेरा फेरी कुछ नहीं है. हम लोगों का कुछ हिडन एजेंडा भी नहीं है. हम लोग ट्रांसपेरेंट से ये जो काम कर रहा है, ये आज भी आप लोग पूछे नहीं. हम लोग खुद ये पूरा कार्रवाई किए, हम लोग कैबिनेट में पास किए और उसके बाद असेंबली में टेबल किए. ये हमारा आफ्टर ऑल इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी. हम लोग किसी को छुपाने के लिए आधा इंफॉर्मेशन देके बाकी का आधा छुपाने का नहीं है. ओनली वी आर वरीड अबाउट प्राइवेसी एक्ट, दैट्स ऑल. अदर देन हम लोगों को कुछ नहीं है. आज भी ना अपोजिशन पूछे नहीं, ना किसी ने पूछा भी नहीं. मैं खुद जिम्मेदारी से ये पूरा हाउस में मैं चर्चा को ले लिए, पूरा डिटेल्स दे दिए और आज ये स्टेटमेंट भी पूरे जिस्ट पूरा इंफॉर्मेशन इसमें 1 by 1 chronological, what is the process, what is the outcome, I have given everything. So again I wanted to tell my learned friend, सरकार कोई छुपाने का, सरकार को कोई भागने का इरादा नहीं है. आप लोग जो बोले हम लोग लीगली वेटिंग कर लेंगे. जो डेटा मैं टेबल कर सकता हूं सब कुछ टेबल करूंगा. इंडिविजुअल का जहां तक मुझे पता है, क्योंकि आई वाज एन पार्लियामेंट मेंबर व्हेन द बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट, डेटा प्राइवेसी एक्ट. अगर किसी इंडिविजुअल का कहीं पब्लिक डोमेन में कहीं पर हम लगाए, वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लायक है. इसीलिए हम लोग टेबल नहीं किए. जो अकबर साहब ने जो पूछ रहा है, जो डिमांड कर रहा है, हम लोग टेबल करने के लिए तैयार है. और दूसरी बात रहा अकबर साहब, ये जो अगर हमारे मंत्री महोदय केटीआर ने पिछले जो मंत्री किया, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कह रहे हैं ना, इसके हिसाब से 33 पेज आप भी स्टडी करो. उनके हिसाब से 100% पॉपुलेशन, 51% बीसीस, 21% ओसीस, 18% एससीस, 10% एसटीस, मिला के 100%. इसमें मुस्लिम बीसीस भी इसमें, उसके एक पेज पलटा है तो एक पेज पलटा अकबर साहब. 34 पेज में मुस्लिम पॉपुलेशन दिया 11%. उन लोग मुस्लिम पॉपुलेशन ने दिया 11%, जो मेरा रिपोर्ट में 12.6% है.
विदाउट 3.1% हम लोग सिस्टम में नहीं आया। 96.9% जो हम लोग जो रिपोर्ट किए उसमें 96.9% में मुस्लिम पॉपुलेशन इज 12.56, मतलब परसेंटेज इंक्रीज हुआ कम हुआ। और दूसरी बात रहा इंक्लूडिंग बीसी रिजर्व, इंक्लूडिंग मुस्लिम बीसी ऑल्सो 51%। अगर ये 51% बीसी मुस्लिम बीसी 10% है, 10% निकाले तो ये 40% हो जा रहा है। जो पिछले सरकार ने जो बीसी का जो पॉपुलेशन दिखा है, तो आज मैं 46.25 दिए बीसी के लिए। तो आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे, जो पॉपुलेशन सिस्टम में आया ये एक्यूरेट है। इसीलिए बीसी हिंदू प्रैक्टिसिंग बीसी का पॉपुलेशन बढ़ गए, बीसी मुस्लिम प्रैक्टिसिंग का भी पॉपुलेशन बढ़ गए। यहां पर कम हुआ ओसीस का, वो पिछले सरकार ने 21% दिया ओसीस का। मेरा रिपोर्ट में इंक्लूडिंग मुस्लिम ओसी प्रैक्टिस 15%, अदरवाइज 12% मेरा हिसाब में है। तो यहां पर कौन सी जाति को हम अन्याय किए? जो एक्चुअल डाटा हम दिखाए, हम पूरे दे दिए, हर चीज हम दिखाए। मुस्लिम का वो अपर कास्ट कौन है, मुस्लिम में बीसी कास्ट कौन है, मैं इन डिटेल टोटल पूरा दिखाए। तो आज बोल रहा है नहीं सरकार ने झूठ बोल रहा है। किसको भटकाने के लिए कोशिश कर रहे अध्यक्ष महोदय? इन लोग किसको क्यों झूठ बोलने के लिए कोशिश कर रहे? वो लोग काम नहीं करते, हम लोग किए, तो वो जो किया वो हम लोगों को ये कर रहे हैं। अकबर साहब आ रहे हैं बीसीस के लिए, तो हमको सिर्फ ये नहीं कहना है कि इतना परसेंटेज है, इतने बीसीज है, इतना है। आई वुड से सर, वी शुड ब्रिंग इन अ लेजिस्लेशन सर विच इज गोइंग टू मेक इट मैंडेट दैट द अमाउंट which is allocated in the budget for the BCs should be spent at the end of the year. If it is not spent, it should be carried forward. So that is very important, sir, like a sub plan. Like we have sir sub plan, कांग्रेस के दौर में SC STs के लिए sub plan में मंजूरी दिए थे, BCs को भी दीजिए सर। This is what I want to make a demand. कि बीसीस के साथ नाइंसाफी हो रही है। नोबडी इज रियली, सिर्फ बोल दे रहे हैं आपका इतना परसेंटेज है, इतना है, इतना है। दैट्स द रीजन सर, अर्लियर आल्सो आई सेड दैट कि बीसीस अब होशियार हो गया है, बीसीस अब उठा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला ये बीसीस के साथ हम मुसलमान SC STs मिलकर जिद्दोजहद करेंगे इनके हक के लिए और इनकी पिछड़ापन और इनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए। सर दिस इज नॉट मैचिंग सर। Sir, as per the 2011 census, the state population was 3,50,03,674. And as per the SKS conducted in 2014, places the state's total population at 3,66,37,160. The UIDAI cites the projected population of Telangana to be 3,80,90,000 in March 2023, as against the total of 3,83,49,916 Aadhaar card which are alive, sir. Which are alive. Alive Aadhaar cards I'm talking about in the state, sir. So the Election Commission of India has published the final electoral rolls of the Telangana in January 2025 with 3,35,27,925 voters in the state, sir. So now, sir, please do not take care I'm criticizing your survey or I'm pointing out, sir. I'm just pointing out what needs to be corrected. Sir, when I say that, so the Election Commission details gives us 3,35,27,925 voters in the state. And if we go by the voter strength of 3,35,27,925, the population of the person in the 0 to age group is only 19,49,629 as per the caste survey data. Is it possible, sir? जी कुछ चीजें मैं बात करना नहीं चाह रहा था, मगर आप बार बार बोलने के बाद आपकी आवाज़ सुनकर लोग मुझे मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा गलत फहमी में समझना ठीक नहीं है। मैं एक सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में
59,000 वोट्स डबल एनरोल है बोल के पूरा डॉक्यूमेंट बना के म्युनिसिपल कमिश्नर का ने डॉक्यूमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आप चाहे तो एक बार रीचेक करवा लो। ऐसे बहुत सारे जगह में ऐसा है कि कुछ लोग गांव में रहते, हैदराबाद काम करने के लिए इधर आ जाते, गांव में भी वोटर लिस्ट में लिखते और हैदराबाद में भी वोटर लिस्ट में इसीलिए लिखते लोग कि भाई कुछ वेलफेयर का कुछ मिले, कुछ काम मिले। ऐसा बहुत सारे वोटर लिस्ट में डबल है साहब। आप चाहे तो वो सॉफ्टवेयर का बारे में आपको पूरा जानकारी देता हूं। जितने भी नॉट ओनली दैट एरिया, आप देखो शेरलिंगमपल्ली, कुक्कटपल्ली, एलबी नगर एरिया में कभी भी 50% से वोटिंग ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां के जो गांव से लोग आके यहाँ रहता है, चुनाव के लिए वो लोग वापस जा रहे गांव में वोट डालने के लिए। तो ये वोटिंग पैटर्न आप डबल एक बार अगर सॉफ्टवेयर है आप चेक करवा दो। आप चाहे तो मैं ऑफिशियली एक कमिटी डालता हूं, पूरा डबल वोटिंग कितना है इस राज्य में, पूरा डबल वोटिंग का फिल्टर करने के लिए मेरे कोई एतराज नहीं है। मैं इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2011 का लेखा पक्का है, क्योंकि जो सेंसस लिए वो ऑफिशियल है, वो वोटर लिस्ट से और किसी से इधर से उधर से कोई ताल्लुकात नहीं। 2011 के बाद सेंसस हुआ ही नहीं। जो भी आज हमारे हो रहे, हमारे ही सही डॉक्यूमेंट है। और दूसरी बात रहा, ये जो डॉक्यूमेंट वो पिछले सरकार ने जो बनाया, इसमें से एक पेज का ऑफिशियल, क्योंकि वो लोग अभी तक ऑफिशियल नहीं माना, इसीलिए मैं कोट नहीं किए, एक पेज कोट करना चाहता हूं मैं। उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट स्पेसिफाइड कम्युनिटी पॉपुलेशन एज पर SKS 2024 इन तेलंगाना स्टेट। आज हम लोग एबीसी कैटेगराइजेशन जो SCs का है, 59 कास्ट एंड सब कास्ट है अकबर जी, मगर सरकार के पिछले सरकार जो डॉक्यूमेंट बनाया SCs के, SC एंड SC सब कास्ट का 82 कास्ट दिखा है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट देता हूं, आप चाहे तो इंक्वायरी कमेटी डालो बोलते डालता हूं, आप जो बोले मैं वो करने के लिए तैयार हूं, राजी हूं। जो SCs में पूरा 59 कास्ट है, मगर पिछले सरकार ने जो बनाया 82 कास्ट है, उसके हिसाब से 82 कहां से लाएंगे भाई। यहां पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इसी सीरियल में 61 में मोची है, MOCHI, 62 में भी मुच्ची है, MUCHI, कि जो मैनुअल जो चपरासी को, जो गधे को, घोड़े को, सबको सर्वे करने के लिए पिछले सरकार दे तो मनमानी से जो लिखा वैसे ही मैं बोलता हूं, पंपंडा, मतलब वो लिखने में गलत किए तो इसका अलग कास्ट, उसका अलग कास्ट, सब कास्ट लिखते गए, ऐसे बहुत सारे चंचाटी, मतलब वो लिखने में गलत होकर SCs में पिछले सरकार जो SKS रिपोर्ट के बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे ना अपने दोस्त, वो तारीफ किए सो वाले दोस्त बनाए सो डॉक्यूमेंट SCs में 82 सबकास्ट से बोल के डॉक्यूमेंट है भाई। मैं आज इसके बारे में उनको पूछना चाहता हूं, अगर 82 सबकास्ट तेलंगाना में SCs का रहा तो मैं अभी का अभी इस्तीफा दे के मैं निकल जाता हूं, क्योंकि इतना फालतू डॉक्यूमेंट बनाए, फालतू डॉक्यूमेंट के फिर ऊपर से यहां दबा रहे हम लोगों को। भाई ये डॉक्यूमेंट यकीन मत करो, 2011 पॉपुलेशन का लोग आगे हम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। अगर आपसे कुछ हम लोगों को मदद करने के लिए, डॉक्यूमेंट सही बनाने के लिए आप जो हमको सजेशन देंगे, हम ओपन माइंड से है, हम लोग कुछ छुपाने का, अगर आप लोग सही, अगर आप बोले डॉक्यूमेंट टेबल करो, मैं तुरंत बोल दिया, मैं लीडर ऑफ द हाउस हैव टोल्ड वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, ओनली डेटा प्राइवेसी एक्ट के हिसाब से जो नहीं रख सकता हूं। आपको भी यू नो बेटर देन मी, यू आर ए सीनियर लेजिस्लेटर इन दिस असेंबली फ्रॉम 99 to till 2004, यू आर कंटिन्यूअसली कंसेक्यूटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग आ रहे जा रहे, कभी छुट्टी ले रहे हम लोग, मगर बिना छुट्टी आप अकेले ही आ रहे इधर। तो इसीलिए मैं साफ कहना चाहता हूं, हमारा ईमानदारी को आप गलत मत पकड़ो, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप मदद दे दो, जो सुधारने सुधारेंगे, इसमें आप सबका, हमारा सबका जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं डेटा बोले उनो एक उसी के हिसाब से एक पेपर को देके, पेपर में आर्टिकल्स लिखो, दिस इज तेलुगु में बहुत
जाने माने पेपर, वो पेपर का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो लोग उनका क्रेडिबिलिटी मानेंगे। इसी में वही लोग जो एससी पॉपुलेशन 17.50, एसटी पॉपुलेशन 9.91, बीसी पॉपुलेशन 51.08, ओसी पॉपुलेशन 21.50, माइनॉरिटी पॉपुलेशन 14.46, ये पूरा मिला है तो कितना हो रहा सरकार आपको पता है? 114.45% है। ये 14% मैं कैसे लाऊं? ये वन ऑफ द पॉपुलर वेरी who is having highest credibility पेपर में पिछले सरकार देके जो लिखा है, इसमें सीधा सीधा कास्ट वाइज मतलब ऑलमोस्ट डिटेल्स वर्टिकल्स पूरा दिए, एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी ओसी एंड माइनॉरिटी पूरा मिला है तो 114.45%। अब 100% के हिसाब से हम इतने दिन सरकार चला रहे, हम स्कूल में पढ़े 100% के हिसाब से, हम एग्जाम लिखे 100% के हिसाब से, हमको मार्क्स मिले 100% के हिसाब से, 114% कहां से लाऊं? अकबर साहब मुझे क्यों मजबूर कर रहे बोलने के लिए बार बार? भाई हम लोग कोई ऐसा आपत्ति नहीं है, हम लोग किसी को तकलीफ देने का इरादा नहीं है, हम लोग कुछ ना कुछ सुधारने के लिए कोशिश कर रहे आप। और इसके आगे भी एसटी का एससी का सब कैटेगराइजेशन का भी है, आप उसमें भी बोलना है। इसमें आप जो सजेशन देना है, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट भी अगर सबमिट किए हम लोग आप सजेशन लेंगे। अगर इसके अलावा भी ऑल पार्टी मीट बुलाओ बोले तो भी मैं सब फ्लोर लीडर्स को मैं बुलाता हूं, आपके जानकारी आपके सुझाव लेऊंगा, मैं सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूं, इसमें आप मदद दे दो। Sir, I assure the leader of the house, Honorable Chief Minister साहब, कि हमारा पूरा ताउन रहेगा, हमारे अच्छे सजेशंस आपके साथ रहेंगे। बीसीस के साथ आप जो करने की नीयत रखे हैं वो करने के लिए हमारी तरफ से जो भी मदद है हम आपको देंगे। इस हाउस में मैं टेबल पे ऐलान कर रहा हूं क्योंकि उनके साथ बरसा बरस से नाइंसाफी हुई। सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब ये भी बोले नामपल्ली के ताल्लुक से, तो मैं ये कहना चाहूंगा, करेक्ट करना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेन जरूर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने नुमाइंदों को भेजकर इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी करने के बाद में जितने नाम डिलीट करना था कर दिए थे, और वो जो कंप्लेंट दी गई थी वो गलत थी बोल के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड पेपर में बोली। ठीक है, अब आप बोले 50% पोलिंग नहीं हो रही है। सर, मेरे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से एज फार एज सिटी इज कंसर्न एंड ओल्ड सिटी इज कंसर्न, सर, वी हैव माइग्रेंट पीपल। When I use them कि माइग्रेंट, the reason is that कि उन्हें एक घर में गरीब है, एक घर में किराए पे रहता है, 6 महीने का किराया देता है, 6 महीने के बाद 2-3 महीने नहीं देता है, फिर उसको वहां से घर से निकाल देते हैं, फिर बेचारा दूसरे घर में जाता है, तो उसका वोटर लिस्ट का नाम एक एड्रेस पे है, आधार कार्ड एक एड्रेस पे रहता है, राशन कार्ड एक पे रहता है, माइग्रेशन गुर्बत की वजह से। तो ये रीजन है। एंड लास्टली सर के लिए मैं कह रहा हूं सर थ्रू यू, सर, मोर ओवर the state's per capita income for any financial year is calculated on the basis of projected population in the state in that year. Am I right or wrong? So which are you going to take? Which number are you going to take? Your survey findings or the figures which are there in the Government of India's report, or your report? What will happen with that, sir? Sir, it will have so many impact. प्लीज मैं कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए, मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये करेक्शंस है विच वी नीड टू डू। अब उसके बाद में पहले हम चीख रहे हैं एफआरबीएम लेवल कम हो जा रहा, सर लोन्स हमारे हो जा रहे, पर कैपिटा इनकम और जीएसडीपी और जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा सर? प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग सर, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग. Sir, again, going further ahead, sir, according to 2011, sir, this also might be wrong, sir. Honorable Speaker, sir. Sir, now I would like the Civil Supplies Minister to also rise and give a reply to me. I do not mind anybody, stopping me from saying what I have to and giving a clarification. I'm more than happy with that, sir. Sir, according to the Civil Supplies Department data as on 4th February 2025, today, sir, there are 90,10,845 active food security cards, ration cards, in the state, covering a population of
82,31,818. Further, the civil supplies data reveals in the district-wise seeding report on the ration card as on date that the ration card holders have a total of 3,89,68,524 members. But the claim, now sir, but the claim of 1,07,36,714 members were rejected. So now if we have to go by the data on ration card holders and the family members, the above poverty line population is only 72,45,736 only. Moreover, almost 40 lakhs applications are pending for fresh ration card. This means that the state will have 1.30 crore ration cards if all fresh applicants are found eligible. With an average of 3 members per ration card, the BPL population, the state will be no less than 3 crores 90 lakhs. ये सर आधार भी दे दिया, मैं राशन का भी दे रहा हूं. तो अब आप बोलिए सर कि मैं गलत हूं, तो प्लीज आप मुझे बोलिए कि यस मिस्टर ओवैसी, यू आर रॉन्ग, यू नीड टू करेक्ट, you need to study well, prepare well and come. You should not speak like this. I would really, go back, do proper studying, research and then come back. Sir, this is why I am saying, sir. Sir, and if we have to go further ahead, sir, according to SKS caste-wise population, BC constitute 1,85,61,856, that is 51.08% of state population, followed by OCs 78,12,848. ठीक है, उसके ताल्लुक से आप बोल दिए तो मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने जवाब दे दिया है. Similarly, as far as minorities are concerned, there are variations in the data as per. Sir, I will not go to the survey which was done by them, sir. 2011 census and the SKS 2014 and the caste survey, sir. As per 2011 census, sir, the minority Muslim, Christian, Buddhist, Sikh, Jain and Parsis, sir, accounted for a population of 50,01,322, constituting 14.28% of the state population of 3,50,03,674. Sir, now you have given a statement. I thank you very much, sir. You have mentioned about the Muslims, sir. But, sir, we have to talk in minorities, sir. Sir, your statement hasn't given the details of the Sikhs, the Christians, the other Jains and all whoever are in minorities. That is why I was saying. So probably if you include that, I don't know whether it is included or not. Right, sir. So now, sir, my submission to you, Honorable Speaker, sir, is that, sir, why only Muslims? We have to, when we are saying about BCs and talking about giving justice to the BCs में कई सब कैटेगराइजेशन, कई है संगम्स, कई BCs है, तो इसी तरीके से माइनॉरिटीज भी पूरे हैं. माइनॉरिटीज में भी मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है और उसके बाद में जैन भी है. तो मैं चाहूंगा कि उनको भी नहीं sir, we have to think about them because they are also minorities, sir. I have forgotten one important point, sir, so that is why I'm just taking some time, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, through you I will request the Honorable Chief Minister Saab and the IT Minister Saab, sir. Sir, we are talking about artificial intelligence. Sir, ठीक है, मैं सिटी में रिप्रेजेंट करता हूं, ज्यादा मैं सिटी में फिरता हूं. GHMC लिमिट्स के बारे में मैं कहूंगा जिम्मेदारी के साथ, सर, ये सर्वे मुकम्मिल नहीं हुआ GHMC लिमिट में. ठीक है, नहीं हुआ. Sir, now you are asking for a suggestion. My suggestion which I want to give is that, sir, we have artificial intelligence tools are there. We can use the artificial intelligence tool. We have the ration card data. We have the total, ऊपर वो हमारे पास जो कितने घर हैं, कितने गलियां हैं, वो जियो रिपोर्ट क्या कहते हैं? Assessment numbers and everything is there. Sir, we can use artificial intelligence, sir, and correct what I am saying and see if the GHMC findings are right or wrong. If I am wrong, आप बोल सकते हैं कि artificial intelligence से भी हमने verify कर लिया है. The findings of the survey are right. अकबर साहब, आपका जो बात थी वो सही नहीं थी, ये सही है.
कितने डोर नंबर्स कवर्ड हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वो भी दे देगा, कितने गलियां हैं, पूरा है साहब यहां पर। तो प्लीज यूज इट इज माई सजेशन टू यू, अचीविंग द कंट्री टू अ नंबर 1 country in the world, every individual, whether it is Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Parsi, Jain, anyone, all Indians should get an equal share, sir. This is what I am saying, sir, and none can deny that कि Muslims are backward, sir. The Sachar Committee report has said कि मुसलमान सबसे पसमानदा है, सबके पीछे है। मैं मेरे काबिल दोस्त को यह बात कहना चाहता हूं कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अगर आज ये इसको गलत नाम दिया जाता है, इसको ये कहा जाता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, सॉरी सर, इट इज नॉट अ मुस्लिम रिजर्वेशन, इट इज द बैकवर्ड रिजर्वेशन ऑफ 4% विच हैज बीन गिवन। अब जैसे आपके बीसीज है, बीसीज में भगवान को, हिंदू मजहब और सनातन धर्म को मानने वाले बीसीज है, तो उनको मजहब के नाम पे नहीं दिया गया रिजर्वेशन, वो बीसीज को, उनको रिजर्वेशन उनकी पसमानदगी, उनका पिछड़ापन, उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए दिया गया है। और आज मैं यही बात कह रहा हूं कि ये बैकवर्ड क्लास जो है मुसलमान, उनको भी आप मजहबी आंख से न देखें, मजहबी ऐनक से न देखें, ये देखें कि ये बैकवर्ड है। एंड आई विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दैट सर, इफ अगर कोई अपर कास्ट का भी एक ब्राह्मण, एक पुजारी है सर, पुजारी है, ब्राह्मण है, मंदिर में है, उसको बोलते हैं अपर कास्ट है बोल के उसको नहीं देते हैं सर, इकोनॉमिकली वो भी वीक है सर। ऑन द डिमांड आई वुड से कि हमारे बीआरएस दैट्स व्हाट आई एम कमिंग सर। तो हमारे बीआरएस की हुकूमत ने ब्राह्मणों के लिए भी एक बनाया था ओवरसीज स्कॉलरशिप का, इसका, सो विच वी रियली अप्रिशिएटेड दैट। अचली कास्ट के लिए भी बोले थे। तो मैं यही बात कह रहा हूं और साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि यही चीज को देखते हुए मरकजी हुकूमत और मोदी हुकूमत ने 10% ईबीसी को दिया, ईबीसी को दिया। अब जब हमारा नया सेंसस का सर्वे होगा तो हम डिमांड करेंगे और कांग्रेस से और सेक्युलर पार्टी से सबसे कहूंगा कि ये ईबीसी का जो 10% है इसको 25% कर दीजिए। इसमें सब इकोनॉमिकली बैकवर्ड जितने भी है सारे आ जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी भी सपोर्ट करेगी इसको। सर लेट अस नॉट सी दैट सर, इनफ सर, इट इज इनफ नाउ, इट इज इनफ दैट वी लुक अपॉन अवर कंट्रीमैन as a Hindu, as a Muslim, as a Sikh, as an Isai, sir. It's enough, sir. Let us look upon them as our Indians, sir. They are our Indians, sir. Whether it is a Muslim, he is an Indian. Whether he is a Sikh, he is an Indian. Whether he is a Hindu, he is an Indian. Whether he is a Christian, he is an Indian. Let us see as an Indian and let us build a nation. Let us bring all together and let us work together and see that everybody gets the justice. And the people who are backward, who are been denied with justice for all the years, are given the justice. ये जरूरी है sir. Sir, on a positive note, sir, the reservation intended to ensure economic, educational, and social advancement of the disadvantaged sections of society, that is the SCs, STs, BCs, minority, and even the backward section of the upper caste, sir. The objective of reservation in local bodies and legislative bodies for these sections is to ensure their political empowerment. It is to ensure their education empowerment and also for their livelihoods to be improved, sir. Reservation are thus a way forward to creating a sense of belongingness among these sections and encouraging them to participate in nation building and progress of the country towards a developed and enlightened nation, sir. A sense of participation gives these sections a moral boost and encourages them to contribute their best to the nation and the society, sir. The reservation for backward section minorities are also to be looked at from the perspective rather than from the prism of religion, sir. Sir, when I say this, sir, I also say that कि अब हमको सिर्फ इनकी परसेंटेज, ये पॉपुलेशन में इनका हिस्सा, शेयर के बारे में जरूर हम बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा अगर बीसीस के लिए अगर कुछ जरूरी है तो फंड्स एलोकेशन होना जरूरी है सर। उनकी गरबत का खात्मा कीजिए, उनकी पसमानदगी को खत्म कर दिए, उन जो पिछड़ापन है उसको खत्म कर दीजिए। कई बीसी स्टूडेंट्स आज परेशान हैं, बीसी स्टूडेंट सर,
क्योंकि ये सब्जेक्ट बीसी का है, तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि कई बीसी स्टूडेंट्स परेशान हैं, और 3 साल से उनके फीस रिएंबर्समेंट नहीं आई। सर प्लीज सर, थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट सर, अर्लियर आल्सो आई हैव रिक्वेस्टेड सर, आई एम रिक्वेस्टिंग सर, फॉर द सेक ऑफ बीसीज विद द फोल्डेड हैंड, kindly release the scholarship, MTF, RTF of BC students, the minority students, the SC students, the ST students, all the students are suffering, sir. Always they are saying that it will be released. It's been 3 years, it has not been released, sir. और ये BC का जो फंड जो एलोकेट होता है बजट में, उसको भी रिलीज करिए। आप सिर्फ जबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। बीसीज आज होशियार हो चुका है, बीसीज अपना हक चाहता है, और मैं यहां खड़े होकर कहता हूं कि कोई आवाज उठाए या ना उठाए, बीसीज के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी आवाज उठाएगा, मजलिस आवाज उठाएगी, उनके हक के लिए लड़ेगी। आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिर में ये थी इस वक्त की ये खबर। रोजाना की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोज न्यूज। अब मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।